morning, students. Today I am sharing a video with you. In that video, we will discuss in detail about Animate software, layers and animations for class 7th computer science. In this chapter, we will cover the following topics. First of all, what is Animate? Graphics in Animate, working with layers, symbols and instances, animation in Animate, frames, frame by frame animation, and tuning. In this regard, we are going to start our topic, the Animate. Animate, formerly known as Adobe Flash Professional, is a multimedia authoring and computer animation program developed by Adobe Systems. Most of the features on working of Adobe Animate are similar to Adobe Flash Professional. Animate is specially designed to create vector graphics, animations, video games, web page components. Animate is also used to make a video over the internet. In Animate, you can insert an image and add animations to that image. When you run that animation, it is called playing a movie. जो आपका एनिमेट सॉफ्टवेयर है, यह एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम जो हमारे स्टिल इमेजेस होते हैं उनको मूवमेंट देने के काम आता है। उनको हम ड्रा कर सकते हैं और ड्रा करने के बाद जो है हम उसको मूव कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक थ्योरी का पार्ट है, दूसरा प्रैक्टिकल का पार्ट है। In this video, we will discuss about the theoretical portion of the chapter, and the practical portion will be done in the computer lab when you will come to the school. In this, first of all, Animate, graphics in Animate. In Animate, you do not need to create all your graphics. You can import bitmaps and vector graphics from any other applications. When you import a bitmap graphic, it is immediately added to the Animate library for use in other frames in our movie. इसके अंदर क्या है, एनिमेट के अंदर जो कि सभी ग्राफिक्स हमें अपने आप बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम जो है जो पहले से बने हुए हमारे इमेजेस हैं उनको हम जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये दो तरह के हमारे ग्राफिक्स होते हैं, एक बिटमैप होता है और दूसरा होता है वेक्टर। नाउ बिटमैप ग्राफिक्स, a bitmap graphics is composed to many tiny parts called pixels, which are of many different colors. When you enlarge, rotate or stretch, these graphics become ragged and suffer loss in their resolution. जो बिटमैप ग्राफिक्स है वो हमारे जो है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर बना होता है जिसको हम पिक्सल्स कहते हैं। वो पिक्सल्स जो है डिफरेंट कलर्स के होते हैं और जब हम इन इमेजेस को एनलार्ज, उनको बड़ा करते हैं, घुमाते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो उनके जो पिक्सल्स जो है वो टूट जाते हैं, थोड़ा सा रब हो जाते हैं। अ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट एंड अ जॉइंट photographic expert group are the examples of image file type that contain bitmaps. जो दो तरह के हमारे इमेजेस होते हैं, GIF फाइल्स और JPEG फाइल्स, जिनको जो कि हम बिटमैप इमेजेस कह सकते हैं। जो दूसरी तरह का टाइप है दैट इज वेक्टर ग्राफिक। A vector graphic is not made up of pixels. Instead, vector graphics comprises paths which are defined by a start and end point along with other points, curves,
and angles along the way. You can enlarge, rotate, or stretch these graphics without any loss in its resolution. These graphics are very small in size as compared to the bitmap graphics. जो हमारे वेक्टर ग्राफिक्स हैं ये हमारे जो है स्मॉल पार्ट से नहीं बने होते। ये जो है हमारे जो ग्राफिक्स के पाथ होते हैं उनको जो है हम स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट का डिफाइन क्या होता है, जो हमारे बने हुए हैं कर्व से, एंगल से, और आप लोग जब उनको जो है बड़ा करते हैं, उनको घुमाते हैं या उसको स्ट्रेच करते हैं तो इनके पिक्सल्स जो है वो लॉस नहीं होते। इनके जो पिक्सल्स जो हैं सेम के सेम रहते हैं, चाहे आप उसको छोटा कर लीजिए या बड़ा कर लीजिए। जो ग्राफिक्स हैं मींस वेक्टर ग्राफिक्स जो हैं इनका साइज भी छोटा होता है बिटमैप ग्राफिक्स के कंपैरिजन के अंदर, क्योंकि वो जो है आपके सिस्टम के अंदर जो है कम स्पेस को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है दैट आर लेयर्स। लेयर्स आर द की कंपोनेंट्स टू वर्क विद ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमेशन। Layers are very helpful to add depth to our graphic objects. Inanimate related objects can be placed on a single layer to keep them organized. Objects in one layer can be edited without affecting objects on another layer. Layers are also useful for more complex movies. They are helpful in working with multiple animations. लेयर्स क्या हैं? लेयर्स हमारे जो है जो ट्रांसपेरेंट शीट्स, हैव यू सीन और हैव यू यूज एनी ट्रांसपेरेंट शीट फॉर ड्राइंग द स्केट्स और फॉर ट्रेसिंग एन इमेज? जो आप अक्सर यूज करते हैं, जो हमारे कुछ ट्रांसपेरेंट पेपर्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं किसी भी फोटोग्राफ को, किसी भी ग्राफिक को ट्रेस करने के लिए, उसी तरह की जो है ये आपकी लेयर्स होती हैं जो कि एक ट्रांसपेरेंट पेपर की तरह होती हैं। और इन लेयर्स को जो है जब हमें कोई भी एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर ड्रा करनी होती है तो उसका हम यूज करके, लेयर्स का यूज करके उसको इजी बना सकते हैं। वो कैसे? सपोज करिए अगर आपकी पिक्चर के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज करिए आप एक सीनरी बनाना चाहते हैं जिसके अंदर स्काई हो, ट्रीज हों, बर्ड्स हों, रोड्स हों, कोई व्हीकल चल रहा है, ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इस पार्ट के अंदर जो है कितनी एक्टिविटी हो काउंट कर सकते हैं आप लोग। जैसे स्काई हो गया, फिर जो है वाटर हो गया, ट्रीज आ गए, रोड आ गए, ह्यूमन बीइंग्स आ गए, और साथ के साथ जो रोड के ऊपर कुछ व्हीकल्स, जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं वो मूव करते हुए नजर आते हैं। तो हमारे इतने ऑब्जेक्ट्स हो गए। इन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम एक ही जगह पर ड्रा कर देंगे तो वो तो ठीक है, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इफ वी वांट टू चेंज एनी ऑब्जेक्ट। जब हम इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो उसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो भी जो है हमारा रब हो जाएगा। तो इन चीज़ों को इजी बनाने के लिए जो है यहाँ पर एक लेयर्स नाम की कंपोनेंट जो है वो ऐड किए जाते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं उसके बीच में से एक दूसरी जो उसके नीचे की लेयर होगी उसको ये ऑब्जेक्ट नजर आएंगे। इसको एक लेयर के ऊपर जो हम स्काई बना लेंगे, नेक्स्ट के ऊपर हम कुछ ट्रीज ड्रा कर लेंगे, फिर जो है हम कहीं पर वाटर दिखा देंगे, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज दिखा देंगे नेक्स्ट के ऊपर एक रोड पर व्हीकल जाता हुआ दिखा सकते हैं। इनमें से जिसमें भी हमें चेंज करना है हम उसी लेयर को चेंज करके दोबारा से वहां पर इसको सेट कर देंगे। तो इन दिस केस these layers are very helpful in addition of different type of components in the same movie. These layers are of several kinds. जो layers हैं वो different तरह की हमारे पास होती हैं। These are normal layers, guide layers and mask layers. By default, all the layers you add to the timeline are normal layer.
which means all the objects on the layer appear in the movie। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे अलग अलग तरह की जो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे लेयर्स के, वो होती हैं नॉर्मल लेयर, गाइड लेयर और मास्क लेयर। जब आप लोग एनिमेट के अंदर कोई भी नई लेयर ऐड करते हैं वो हमारी एक नॉर्मल लेयर होती है। इसका मतलब क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे अपीयर होते हैं वो हमारे एक नॉर्मल लेयर के ऊपर आते हैं। ऑब्जेक्ट्स यू प्लेस ऑन द गाइड लेयर डू नॉट अपीयर द मूवी। सेकेंड टाइप आती है हमारी गाइड लेयर। गाइड लेयर के ऊपर जो हम अपने ऑब्जेक्ट्स डालते हैं वो हमारे मूवी के अंदर जो है वो अपीयर नहीं होते। A regular guide layer can be used for reference point and alignments. A guided layer is a layer linked to regular layer. इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी गाइड लेयर है वो हमारा काम करती है हमारे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स हैं उनके रेफरेंस के लिए और हमारे ऑब्जेक्ट्स के अलाइनमेंट के लिए वो जो हमारा काम करती है। उसके बाद आता है मास्क लेयर। मास्क लेयर हाइड्स लेयर्स लिंक्ड टू इट। A mask layer is used to show or hide a portion of your layer. A mask layer is like a stencil or paper cutout where you can see what is behind it through the holes. You can have many layers masked by a single mask layer. मास्क लेयर हमारी क्या है, सबसे पहले ये देखिए मास्क क्या होता है। मास्क होता है जब हम कोई भी मुखौटा अपने फेस के ऊपर लगा लेते हैं तो उसमें हमारा चेहरा जो है वो छिप जाता है। जहां से हम उसको कुछ उसमें होल करके रखते हैं वही पोर्शन नजर आता है। इसी के अंदर जो है हमारा जो मास्क लेयर है, मास्क लेयर के अंदर वो क्या करती है, इसका जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है वो लेयर्स जो लिफ्ट के साथ लिंक्ड हैं उनको हाइड करने के काम आती है। कैसे कि कई बार जो कि हमें एक ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना है तो मास्क लेयर का यूज करके हम उसको हाइड कर सकते हैं। अगर सपोज करिए नेक्स्ट फ्रेम के अंदर आप लोग दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना चाहते तो उसके अंदर जो कि वो नेक्स्ट वाले को हाइड कर लेगा। इन लेयर्स के साथ जो है क्या क्या हमारा काम हो सकता है। सपोज इफ यू हैव एडेड द लेयर्स देन यू कैन आल्सो वर्क ऑन देम। उनके ऊपर वर्क कैसे करना है, वर्क करने के लिए जो है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग उसके वेज हैं। एक लेयर्स को जो है आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं, लेयर को जो है रीनेम कर सकते हैं, लेयर को डिलीट कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं, उसको स्टैक बना सकते हैं और लास्ट में जो है उनको मूवमेंट देने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो आपके एडिशंस के लिए जो है आपकी हेल्प करते हैं। So students, I have now described you the portion of this chapter. First of all, what is Adobe Animate. Second is that which type of graphics that we can create and insert into our timeline. And third is the layers and its types. So students, it's enough for today's chapter. We will do more portion of the chapter in the next video. Till then, bye bye. Okay.